محترم ناظرین السلام علیکم، روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 بوڑھا زانی، 2 گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغلی کرنے والا، چغل خور، جھوٹا گواہ، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ BRS دور میں بانسواڑہ حلقے کو کروڑوں مالیت کے فنڈ سے دی گئی مثالی ترقی، جو صرف ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام سرینواس ریڈی سے ممکن ہوا۔ مختلف قائدین نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے کیا اظہار۔ CM KCR کی کارکردگی و ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی خدمات سے متاثر ہو کر انساپور کے BJP و کانگریس قائدین نے کی ان کے ہاتھوں BRS میں شمولیت حاصل۔ آرمور رکن اسمبلی جیون ریڈی کا دورہ۔ آرمور ملا ریڈی تالاب پر جاری منی ٹینک بانڈ کے کاموں کا لیا جائزہ۔ نندی پیٹ سینٹرل لائٹنگ کا کیا معائنہ۔ وہ آندھرا نگر کے مختلف قائدین نے ان کے ہاتھوں کی BRS میں شمولیت حاصل۔ کاماریڈی میں منعقدہ میاں نیتو کرن کی فرزند کی شادی تقریب میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، MLC کے کویتا، MLA بیکالا گنیش گپتا، گورنمنٹ ویب ڈمپک گوردھن و دیگر نے کی شرکت۔ بودھن ووٹر فہرست کی دوبارہ جانچ کی جائے۔ صرف اقلیتی وارڈ سے ہی زیادہ درخواستیں ہونے پر رکن پارلیمنٹ MP اروند نے ضلع کلکٹر کو خط لکھتے ہوئے جانچ کا کیا مطالبہ۔ محبت کے نام پر ہراسانی، بیٹے کی طالبہ نے کی خودکشی۔ 2 ٹاؤن پولیس میں مقدمہ درج۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عوام صدرم کیمپ سے استفادہ کرے اور حکومت کی مراعات سے استفادہ حاصل کرے۔ عوام کی مدد کے لیے سارا فاؤنڈیشن ہر وقت تیار۔ ذمہ داران کی عوام سے اپیل۔ شہریان نظام آباد کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہر مہینے کی طرح اس سال یہ مہینے میں بھی صدرم سلاٹ بکنگ کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے۔ DRDA ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو پریس نوٹ ریلیز کی گئی ہے اس میں صدرم سلاٹ بکنگ کی ڈیٹ آ چکی ہے۔ 8 سپٹمبر بروز جمعہ کو یہ صدرم سلاٹ بکنگ کی جائیں گی۔ میں تمامی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ڈسیبل ہینڈیکیپس اور جو لوگ بھی صدرم سلاٹ بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے قریبی می سیوا پر جا کر اپنی سلاٹ بکنگ کروائیں، اور جو رینیول صدرم سلاٹ بکنگ کروانے والے ہیں وہ لوگ سے بھی میں پھر ایک مرتبہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جس کسی کا بھی صدرم رینیول کروانا ہے وہ لوگ بھی جا کر سلاٹ بکنگ کروائیں۔ ڈاکٹرز کی ایگزامن گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل نظام آباد میں ہوگی۔ 13، 20 اور 27 تاریخ کو یہ جتنے بھی صدرم سلاٹ بکنگ کی گئی ہے ان لوگوں کی ایگزامن کی جائیں گی۔ میں تمامی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ اس فائدے سے مستفید ہو کر اپنے
अपने सर्टिफिकेट्स को हासिल करें। ये जो भी डिटेल्स DRDA डिपार्टमेंट की जानिब से प्रेस नोट रिलीज की गई है। हम सारा फाउंडेशन, आप जानते हैं कि सारा फाउंडेशन काफ़ी अरसे से ऐसे माजूर डिसेबल हैंडीकैप्ड बच्चों के ऊपर काम कर रही है। गुरबा के लिए तैयार करदा डबल बेडरूम मकानात नाकिस। रामेश्वर पल्ली गांव के डबल बेडरूम मकानात साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया दौरा। రామేశ్వరంపల్లిలో డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసింగ్, ఇది కేసీఆర్ తెలంగాణలో బంగారమైన డబుల్ బెడ్రూమ్. కేసీఆర్ ఉండేది కేసీఆర్కు 1,000 కోట్ల రూపాయలది ఆయన ప్రగతి భవన్, 1,000 కోట్లది సెక్రటరియట్, వాళ్ళ కుటుంబానికి 1,000 కోట్ల రూపాయల బంగ్లాలు, ఎమ్మెల్యేలకు ఎమ్మెల్యే ఆఫీసు లక్షల రూపాయలది. కానీ మాకు గరీబులకు ఇచ్చింది ఇలాంటి ఇచ్చి, అది కూడా చూడండి, మీరే ప్రూఫ్, నాకంటే ఎక్కువ మీరు కళ్ళారా చూస్తున్నారు. ఇలా తవ్వలేదు, ఎట్లా పోతాను ఇంట్లో, ఎట్లా ఉంటారు? 5 సంవత్సరాలు అయింది, అలాట్మెంట్ లేదు. చూడు పర్యవాసిని, అది ఎక్కడిదక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఎవరి సొమ్ము? కేసీఆర్ నీ సొమ్మా? वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को ना खोलने का मामला, तहकीर अदालत की कार्रवाई, हाई कोर्ट का इंतबाह। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम्स को ना खोलने से मुताल्लिक मुकदमे में हिदायत दी कि जुम्मा 8 सितंबर को अदालत में वक्फ रिकॉर्ड रूम्स की अदम कशादगी की तफसीली रिपोर्ट अगर पेश नहीं की गई तो तहकीर अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट में मुकदमा नंबर WP 23976/2023 के तहत जस्टिस M सुधीर कुमार ने आज सीनियर एडवोकेट जनाब अब्दुल मुखीद कुरैशी की बहस के समाअत के बाद मज़कूरा ख्यालात का इजहार किया। जस्टिस सुधीर कुमार ने कहा कि 2017 में मुफाद आमे की दरख्वास्त के तहत हाई कोर्ट में हुकूमत ने तयक़ुन दिया था कि वक्फ रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है। 6 हफ्ते में इस कार्रवाई को मुकम्मल करके रिकॉर्ड रूम्स वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिए जाएंगे। अदालत को दिए गए तयक़ुन के बाद 6 साल गुजर चुके हैं, इसके बावजूद आज तक रिकॉर्ड रूम्स वक्फ बोर्ड के हवाले क्यों नहीं किए गए? जस्टिस सुधीर कुमार ने इस मुकदमे में हुकूमत के आला अहदेदारों की शख्सी हाजिरी पर जोर दिया, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को तयक़ुन दिया कि जुमा तक इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी जाएगी। इस पर जस्टिस सुधीर कुमार ने कहा कि वो सिर्फ इसीलिए आला अहदेदारों की शख्सी हाजिरी को इस्तिस्ना दे रहे हैं कि जुमा तक अदालत में तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी जाए कि 6 हफ्ते के तयक़ुन के बाद इसे पूरा करने में 6 साल क्यों लग गए। हाई कोर्ट ने इस मुकदमे की आइंदा समाअत जुम्मा 8 सितंबर को मुकर्रर कर दी। इंतज़ामिया और तुलबा दोनों भी असातिज़ा की क़दरदान बने तो इदारे की तालीमी तरक्की यकीनी। मदरसा फलाह दारैन नंदीपेट जो मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासमी की तवज्जुआत का मरकज़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वफ़ात के बाद से मुसलसल तालीमी व तंजीमी निगरानी मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा और मौलाना अबरार अहमद क़ासमी कर रहे हैं। हर माह मदरसा दौरा करते हुए तुलबा के इम्तिहानात और इंतज़ामी उमूर में ज़िम्मेदारान की रहबरी कर रहे हैं। आज शुबा हिफ्ज़ के 3 तुलबा के पारों का इम्तिहान लिया। इसके अलावा नाज़िरा कुरान का इम्तिहान और शुबा नूरानी क़ायदे की जांच करते हुए अच्छे तासुरात का इजहार फरमाया। नेज़ बहुत सारे इंतज़ामी उमूर की तहक़ीक़ात करते हुए इसको बेहतर से बेहतर तरीक़े पर अंजाम देने के तरीक़े बताए। मदरसे की इंतज़ामिया ने इन अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए मज़ीद रहबरी की ख्वाहिश के इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासमी ने शुबा हिफ्ज़ के तरीक़े तदरीस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर तुलबा और इंतज़ामिया बाहमी तौर पर हम आहंगी व हम मिजाजी के साथ असातिज़ा कराम की क़दरदानी करें, इनकी खिदमात को सराहते रहे तो यकीनन मदरसा तरक्की की राह पर चलेगा, वरना बड़े बड़े शहरों में भी बाज़ मदारिस नाम के ही होके रह जाते हैं और तालीमी तरक्की रुक जाती है। फिर वही मसाइल पेश आते हैं जो आए दिन दीनी मदारिस में देखने और सुनने को मिल रहे हैं। शोबा हिफ्ज़ के उस्ताद मुफ्ती फयाज ने अच्छी मेहनत का मुजाहरा किया, जिस पर इनके शाल पुशी करते हुए हिम्मत अफजाई की गई और तुलबा को नमाज से नवाजा गया। वाज़ेह है कि इस मदरसे के 6 माही व सालाना इम्तिहानात के अलावा हर माह तालीमी रिपोर्ट इन ज़िम्मेदारान तक पहुँचाई जाती है। इस मौके पर मौलाना अबरार अहमद क़ासमी, हाफिज़ मोहसिन, मुफ्ती फयाज, हाफिज़ अब्दुल रशीद, हाफिज़ इमरान, मोहम्मद अरसलान, अब्दुल समी व दीगर मौजूद थे। बांसवाड़ा कानून साज असम्बली हल्के भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवासरेड्डी को रुद्र मंडल के राया कुरु देहात के मुख्तलिफ तबके से वाबस्ता संगमों के कायदे ने भरपूर हिमायत करने का किया ऐलान। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवासरेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ रिहाइशगाह में मुख्तलिफ तबके से वाबस्ता संगमों के बुजुर्ग कायदीन ने मुलाकात की
وہ ان کے دیہات کے لیے ضروری تمام قسم کی بنیادی سہولیات کی فراہمی عمل میں لانے کے علاوہ مختلف طبقے کے سنگموں کے بھون کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا اور اس موقع پر رائے کرو دیہات کے مختلف طبقے سے وابستہ سنگموں کی جانب سے منظور کردہ قرارداد کی کاپی کو پوچرام کو حوالے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بانسواڑہ حلقے میں عظیم شخصیت پوچرام سنیواس ریڈی کا پیدا ہونا اس علاقے کے عوام کی خوش قسمتی ہے۔ بانسواڑہ حلقہ ترقیاتی کاموں کے معاملے میں کافی پیچھے تھا، لیکن اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی کی کاوشوں کے سبب بانسواڑہ حلقے میں ترقیاتی کاموں کو روبے عمل میں لانے کے لیے کئی کروڑ روپے فنڈز کی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے، جس سے بانسواڑہ حلقے میں تیز رفتار کے ساتھ ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا جا رہا ہے، تو اس کا سہرا ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سنیواس ریڈی کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR حکومت کے اقتدار پر آنے کے فوری بعد سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں نہ ہونے والے کئی ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا گیا اور تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کی ترقی کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو نہ صرف روبے عمل میں لا رہے ہیں، بلکہ ان اسکیمات کے ثمرات سے مستحق عوام کو راست طور پر فیضیاب کرنے کے مقصد کے تحت ذمہ دار عہدیداران کو متحرک کیا جا رہا ہے، جس سے ریاست تلنگانہ میں مقیم ہر ایک فرد و افراد خاندان ریاستی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اسکیمات سے مستفید ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں صرف BRS پارٹی کا گلابی جھنڈا ہی لگایا جائے گا، وہ دیگر پارٹیوں سے وابستہ جھنڈا لگانے کی اجازت نہ دینے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں رایا کرو سرپنچ B گنگارام، نائب سرپنچ P گنگارام، پارٹی کے معزز صدر P لکشمیا، AMC ڈائریکٹر گووند راؤ پٹیل، مختلف طبقے سے وابستہ سنگموں کے صدور K سنتوش، A پوشٹی، بابو راؤ، K گنگارام، سائلو، P گنگارام، شیخ غوث شنکر و دیگر BRS پارٹی سے وابستہ قائدین کارکنان کے علاوہ مختلف محکمے جہاں سے تعلق رکھنے والے عہدیداران نے شرکت کی۔ ضلع کامریڈی بی بی پیٹ منڈل کے مقام پر واقع مہاتما گاندھی جیوتیبا پھولے ہاسپٹل میں زیر تعلیم طلباء کو سائی ریڈی کے زیر نگرانی میں سائبر کرائم کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی۔ ضلع کامریڈی بی بی پیٹ منڈل کے مقام پر واقع مہاتما گاندھی جیوتیبا پھولے ہاسپٹل میں زیر تعلیم طلباء کو سائی ریڈی کے زیر نگرانی میں پولیس ملازمین نے سائبر کرائم کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سائبر کرائم مجرمین بھولے بھالے عوام کو اپنی بناوٹی باتوں کے ذریعے جال میں پھانستے ہوئے سخت محنت کے ذریعے اکٹھا کیے گئے رقومات کو پلک جھپکتے ہی نظروں سے غائب کر رہے ہیں، لہٰذا ہر ایک فرد سائبر کرائم کے ذریعے دیے جانے والے دھوکہ دہی سے واقفیت رکھتے ہوئے سائبر کرائم مجرمین کی شاطرانہ حرکت کو ناکام بنائے۔ خصوصی طور پر عوام موبائل فون استعمال کرتے وقت کسی اجنبی شخص کی جانب سے بھیجے گئے پیغامات پر کلک نہ کرے۔ اگر کلک کیا گیا تو آپ کا فون مکمل طور پر سائبر کرائم کے کنٹرول میں آ جائے گا، جس سے آپ کو نقصان پہنچانے کا خدشہ رہتا ہے۔ اسی لیے عوام سائبر کرائم مجرمین کے تعلق سے احتیاط کرے اور اسی طرح سے خاص طور پر لاٹری میں پیسہ جیتنے جیسے پیغامات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کرتے ہوئے سائبر کرائم مجرمین کی شاطرانہ حرکت کو ناکام بنائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپنے مکان و دکان کی حفاظت کے لیے CC کیمرے کی تنصیب عمل میں لانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ CC کیمروں کی وجہ سے مشکوک افراد کے علاوہ مشتبہ حالات میں گھومنے پھرنے والوں پر کڑی نظر رکھی جا سکتی ہے اور CC کیمروں کی مدد سے سرقے کی واردات میں ملوث سارقوں کو اور جرائم پیشہ افراد کے علاوہ اغوا کے مقدمے میں ملوث ملزمان کو آسانی کے ساتھ گرفت میں لے سکتے ہیں اور انہیں سزا دلانے کے لیے بھی CC کیمرہ اہم ترین کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا عوام اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت اپنے گھروں کے پاس CC کیمرے کی تنصیب عمل میں لا کر سرقے کی واردات پر قابو پا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جرم کے بعد تکلیف اٹھانے کے بجائے CC کیمرے پہلے سے لگوا دیں تو جرائم نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک CC کیمرہ 100 پولیس اہلکاروں کے برابر ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سائی ریڈی، اساتذہ صاحبین و دیگر نے شرکت کی۔ KCR حکومت کے دور اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات اور جاری ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر بالکنڈہ منڈل کے جلال پور دیہات سے تعلق رکھنے والے کانگریس اور BJP پارٹی سے وابستہ قائدین نے ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں BRS پارٹی میں کی شمولیت اختیار۔ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں روبے عمل میں لائے جانے والی فلاحی و ترقیاتی اسکیمات کے علاوہ جاری تیز رفتار ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر بالکنڈہ منڈل کے جلال پور دیہات سے تعلق رکھنے والے
कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से वाबस्ता 60 कायदी ने वेलपुर के कैंप दफ्तर पर रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद के तहत कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। रियासती वज़ीर आला की जानिब से शुरू किए गए फलाही स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिससे रियासत तेलंगाना को सारे रियासतों में एक अलहदा शनाख्त हासिल हुई। गुज़िश्ता 9 बरसों के दौर इख्तिदार में तेलंगाना हुकूमत में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के अलावा अवाम की ज़रूरियात वो तरक्की के लिए नाफिज करदा स्कीमात के तहत अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिससे रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम BRS हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि मुल्क के किसान साबिक़ा हुकूमत के इक़्तिदार में काफ़ी परेशान हाल थे, ताहम TRS हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के तहत किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के बायस किसान खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं और किसानों की भलाई के लिए रियासत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही। और इसी तरह से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना नहीं बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब ज़ात और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमत जहत तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते हैं और इनकी तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आला KCR इस रियासत को गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाली रियासत की हैसियत से फ़रोग़ देना चाहते हैं। KCR ने तेलंगाना तहरीक की कामयाबी के परचम लहराने के बाद जहां तेलंगाना गांधी की हैसियत से शोहरत हासिल की है, वहीं रियासत के हर एक इलाका और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत को तरक्की याफ्ता बनाने को अपना मकसद हयात बना लिया है। गंगा जमनी तहज़ीब के मिसाली नमूने की हैसियत से जहाँ पर इन्होंने तमाम तबक़ात को मसावियाना हुकूक़ की फ़राहमी के दस्तूर पर अमल करते हुए नज़र क़ायम की और इसी तरह से अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात के तहत राहत फ़राहम करने का बेड़ा उठाया और सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब बिन बिहाई लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को रूबे अमल में लाया जा रहा है, तो वही सेहत के एतबार से अवाम को मौसर इलाज व मुआलजे की फ़राहमी के सिलसिले में बस्ती दवाखाने का जाल बिछाया है। जहाँ तक मुसलमानों की तालीमी, समाजी और पसमानदगी को दूर करने का मसला है, तो बुनियादी तौर पर इस मसले की यकसी के लिए अक़लियती तबक़े को मुफ्त तालीम की फ़राहमी के लिए अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का जाल बिछाया है और रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से इक़्तिदार संभालने के बाद रियासत के तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला जिन्होंने अक़लियतों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमात को मुतारफ़ करवाया और इस मौके पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों ने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत की दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बायस बालकुंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक्याती कामों के लिए फिल-फूर फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने से मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में CC रोड, रेंज, कंपोशेट के अलावा दीगर तरक्याती काम तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किए गए हैं और अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के समराज से हर एक तबके के अवाम को मुस्तफ़िद करवाया जा रहा है और माशी तौर पर मुस्तहकिम ना होने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज व मुआलजा फ़राहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से शुरू किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए एक नेमत से कम न होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी, MPP लावण्य लिंगागौड़, हल्के सामान्य कमेटी मेंबर T गंगाधर, मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, मौजे के सदर G प्रदीप, मुकामी सरपंच G कल्पना अरेन, नायब सरपंच G लिम्बाद्री, रैतु बंधु मौजे के कोऑर्डिनेटर G मोहन रेड्डी, साबिक़ा सरपंच G नरसा रेड्डी, जलालपुर लिफ्ट चेयरमैन G गंगा रेड्डी, पार्टी यूथ कायदीन श्रीकांत गौड़, D दीपक, T संजीव, S कल्याण, D मधु, संजीव, सागर, कायदीन कारकुनान व दिगर ने शिरकत की।
रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। ज़िले निर्मल के मुकाम पर KCR हुकूमत के इख्तिदार में जारी फलाही स्कीमात व जारी तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर निर्मल रूरल मंडल न्यू पोचमपाड़ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 40 अफराद, दलावरपुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 30 अफराद, नरसापुर मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 30 अफराद के अलावा लक्ष्मण चंदा मंडल के कनकापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से हैरत अंगेज़ स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिसके तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और दलित तबके को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के मकसद के तहत दलित बंधु के तहत रकमी इमदाद की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है और इसी तरह से अक़लियती अवाम के लिए भी माली इमदाद व फसलों के खर्चात को मुआफ़ किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR ने तेलंगाना की हमत जहत तरक्की का एक रोशन बाब का आगाज़ किया, जिसकी वजह से गुज़िश्ता बरसों के दौरान अवाम के फलाह व बहबूद के लिए TRS हुकूमत हर मुमकिन तौर पर इक़दामात कर रही है। BRS की स्कीमात अहद से लेकर लहद तक है, जिसके ज़रिए ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और रियासत तेलंगाना में किसी न किसी स्कीम से हर फर्द मुस्तफ़ीद हो रहा है। KCR की बेहतरीन हुक्मरानी का वाज़ेह सबूत है कि चंद्रशेखर राव इंसानियत नवाज, हमदर्द और आला शख्सियत के मालिक है। इन्होंने अपनी हुक्मरानी के ज़रिए अवाम के खुलूब को फ़तह करने का इजहार किया। बोधन हल्के में वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल को सही तरीके से अंजाम देने के लिए MP DRV ने कलेक्टर को ख़त लिखा। बोधन हल्के में वाक़े 246 पोलिंग बूथ में 8,669 दरख्वास्तें मौसूल हुई, लेकिन बोधन शहर के अक़लियती इलाकों में वाक़े 8 बूथ में सिर्फ 4,024 दरख्वास्तें हासिल होने पर MP DRV ने हैरत का इजहार किया। ज़िले कामरेड्डी के फंक्शन हॉल में इनेक़ात अमल में लाए गए निज़ामाबाद मियां नीतू किरण शेखर के फर्जंद की शादी तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता, अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर ने हिस्सा लेते हुए दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद मियां नीतू किरण शेखर के फर्जंद की शादी तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC कल्वकुंटला कविता, गवर्नमेंट वेब MLA गंपा गोवर्धन के हमरा निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की वो नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, कॉरपोरेटर्स, अवामी नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। मोहब्बत के नाम पर हरासा करने से तंग आकर बीटेक की तालिबा ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में अफसोसनाक वाक़या। बीटेक की तालिबा ने एक नौजवान की जानिब से मोहब्बत के नाम पर हरासा किए जाने से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या चारशंबे की शाम निज़ामाबाद ज़िले शहर में पेश आया। टू टाउन के SI अशोक के मुताबिक शहर के गोल हनुमान इलाके में अपने शौहर की मौत के बाद पूनम तिवारी 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहती है। पूनम तिवारी एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर काम करती है। छोटी बेटी स्नेहा तिवारी 18 आर्मूर के कश्तरिया कॉलेज में बीटेक के पहले साल में तालीम हासिल कर रही है। एक नौजवान इसे मोहब्बत के नाम पर हरासा करता था। स्नेहा तिवारी की मां पूनम तिवारी को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने लड़की की सरजनिश की। आज मामूल के मुताबिक स्नेहा की मां पूनम स्कूल गई थी। घर में कोई ना होने की वजह से स्नेहा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। घर वालों ने टू टाउन पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मां की शिकायत के मुताबिक इनकी बेटी ने नौजवान की हरासानी की वजह से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। डॉक्टर मधुशेखर को कुट्टारमूर देवंगा संगम के ज़ेरे निगरानी में अराकीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली वेलफेयर चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले डॉक्टर मधुशेखर को अरकान की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि दी गई जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कोट्टरमूर देवंगा संगम सदर वेलपुर राकेश नायब सदर जी कार्तिक पी शंकर खजानची पी हरिप्रसाद सीनियर संगम से वाबस्ता मेम्बरान जी नागैया टी भुवनेश्वर पी शंकर एन पी गंगाधर बी नारायणा व दीगर ने शिरकत की। कई अजला में 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशकशी। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद कमरमभीम आसिफाबाद मंचियाल राजन्न सिलसिला निर्मल निजामाबाद करीमनगर पेद्दापल्ली जयशंकर भोपालपल्ली मलक भोदाद्री कोत्तागुड़म और कामारेड्डी में कहीं कहीं आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने की पेशकशी की गई है। चाशमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि रियासत में ज्यादातर मुकामात कई मुकामात और चंद मुकामात पर 7 से 12 सितंबर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून ने शिद्दत इख्तियार कर लिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला खम्मम महबूबाबाद में चंद मुकामात और अजला हैदराबाद मलक सिद्दीपेट और वरंगल में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई। इस मुद्दत के दौरान तेलंगाना में ज्यादातर मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। दुबई में तेलंगाना के कैदियों को आम माफी दी जाए, वजीर IT तारक रामाराव की खलीजी हुकूमत से नुमाइंदगी। दुबई के दौरे में मसरूफ वजीर इंडस्ट्रीज व IT व NRI उमर तारक रामाराव ने आज दुबई के अवेयर जेल में बरसों से मुखित तेलंगाना बिलखुसूस सिलसिला ज़िले के 5 कैदियों की रिहाई के सिलसिले में वहाँ की हुकूमत के आला ओहदेदारों और दुबई में मुतैन कौंसिल जनरल हिंद और वहाँ के अरब वकला से बातचीत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने वहाँ की जेलों में मुक़ैद तेलंगाना के बाशिंदों की रिहाई के सिलसिले में दुबई की हुकूमत की तवज्जो दहानी कराई। इसके अलावा कैदियों के अरकान ख़ानदान, रिश्तेदारों और इनके केस की पैरवी करने वाले अरब वकला कौंसिल जनरल हिंद के अहदेदारों से अलहदा तौर पर बातचीत की और केस की पेशरफ से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। उन्होंने तेलंगाना के कैदियों को आम माफ़ी देने की भी दरख्वास्त की। सिलसिला ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद रवि मल्लेजी नामपल्ली डी लक्ष्मण और हनुमंतलू एक केस के सिलसिले में दुबई की जेल में कैद है। तकरीबन 15 साल की सज़ा मुकम्मल करने के बाद भी इनकी रिहाई अमल में नहीं आई। इन 5 अफराद की रिहाई के लिए आज फिर एक मरतबा वज़ीर मौसूफ ने दुबई के अहदेदारों और हिंदुस्तानी कौंसिल के अहदेदारों से बातचीत की। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि मज़कूरा 5 अफराद ने नेपाल के एक बाशिंदे का कत्ल कर दिया था, जिस पर इन्होंने नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासिरा ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इन्हें मुआवज़े की रकम भी अदा की थी। इसके बाद मुतासिरा ख़ानदान ने दुबई हुकूमत को मुजरिमीन को माफ़ करने का एक मकतूब भी हवाले किया था, लेकिन बाज़ वजूहात के बाइस और जुर्म की नोयत के बाइस दुबई की हुकूमत ने इनकी रिहाई के मामले को इल्तिवा में रख दिया। अब तक नेपाल के मुतासिरा ख़ानदान को 15 लाख रुपये मुआवज़ा शरिया क़ानून के मुताबिक अदा किया गया। बातज़ा 2013 में नेपाल के वज़ारत ख़ारिजा से तालमेल करते हुए मज़कूरा 5 मुजरिमीन की आम माफ़ी के लिए दरकार दस्तावेज़ात भी दुबई हुकूमत को पेश किए गए, लेकिन अब तक इनकी रिहाई अमल में नहीं आई। इस मौके पर कौंसिल जनरल राम कुमार से वज़ीर मौसूफ ने ख्वाहिश की कि आम माफ़ी के लिए दुबई की अदालत ने इनकार कर दिया, जिसके पेश नज़र वो दुबई के हुक्मरानों से नुमाइंदगी करते हुए इनकी रिहाई को यकीनी बनाए। 12 सितंबर तक 27 सितंबर 3 मरहलों में सदरम कैंप का इनेकाद ज़िले निज़ामाबाद के माज़ूरीन अफराद इस्तिफ़ादा करें। ज़िले दही तरक्याती कॉरपोरेशन निज़ामाबाद की जानिब से जारी करदा एक सहाफ़ती एलामे के बमौजिब ज़िले निज़ामाबाद में माज़ूर अफराद की माज़ूरी की तशख़ीस के लिए हर माह मुतालिका कैंप का इनेकाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निज़ामाबाद में 13 सितंबर 2023, 20 सितंबर 2023 और 27 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद किया जाएगा। हर कैंप में शिरकत के लिए हर स्लॉट को बुक करना पड़ता है। इस स्लॉट की बुकिंग की तारीख 8 सितंबर 2023 को सुबह 11:30 के बाद आपको अपने सेवा मराकज़ के जरिए तमाम स्लॉट बुक करने और अपनी मीज़ सेवा रसीद में दर्ज जगह और तारीख पर हाजिर होने की ज़रूरत है। सितंबर 2023 को 3 सदरम कैंपों के लिए 5 माज़ूरी के ज़िम्रे के तहत कुल 390 सदरम स्लॉट्स जारी किए जाएंगे। हिदायत: फ़ायदा उठाने वाला कैंप में शिरकत के दौरान मुतालिका मेडिकल रिपोर्ट्स और एक्सरे ला सकता है। फ़ायदा उठाने वाले के साथ सिर्फ एक शख्स को दाखिल किया जाएगा। पुराना सदरम सर्टिफिकेट इन लोगों को लाना होगा जिनके पास सदरम सर्टिफिकेट की तजदीद है। मुस्तफ़िद होने वाले जिनके सर्टिफिकेट की मियाद ख़त्म हो चुकी है वो जल्दी से इसकी तजदीद कर सकते हैं। माज़ूर शख्स को मतला करे कि अगर नहीं तो आपकी मौन पेंशन रोक दी जाएंगी।
जिले निर्मल मामड़ा मंडल के लिंगापुर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी के हाथों चेकों की फ़राहमी अमल में लाई गई। अवाम को बेहतर हुक्मरानी फ्राहम करने के मकसद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले CM KCR की काविशों के सबब रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजन होने का रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने इजहार करते हुए इन्होंने आज कॉलेज प्रोजेक्ट के जरिए शुरू किए गए पैकेज 27 के तहत मुस्तहिक़ीन में चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज इसके हिस्से के तौर पर आज मामड़ा मंडल लिंगापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 19 इस्तिफादा कुनंदगान को 58.20 लाख रुपये मालियती रकम पर मबनी चेकों की फ्राहमी अमल में लाई गई और आरेपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 70 अफराद को 2.98 करोड़ रुपए मालियती रकम के चेकों की मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। कडेमूरी इन्स्पेक्टरी पोचंपाड इन्स्पेक्टरी स्वर्ణ ఘటనవాగు కొబరా భీమాని ప్రాజెక్టులు పూలైనాయి చూస్తుంటే ఎంత కలకలలాడుతుంది మా వాళ్ళు మా రామకిషన్ రెడ్డి ఒక ఏది కెమెరా తీస్తే పేపర్ వేపేయచ్చు మొత్తం కార్పెట్ గ్రీన్ కార్పెట్ లాగా ఉంది। शहर के कांग्रेस भवन में जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी की सदारत में इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद कांग्रेस भवन जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी की सदारत में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर PCC वाइस प्रेसिडेंट ताहिर बिन हमदान ने खिताब करते हुए कहा, राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के अवाम को मुत्तहिद करने के मकसद के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करते हुए अवाम से मुतालिका मसाइल से वाकिफियत हासिल की, इनकी हिम्मत अफजाई की। इन्होंने कहा कि मुल्क में फूट डालते हुए हुकूमत करने की पॉलिसी अपनाने वाली मरकज की मोदी हुकूमत की साजिशों को नाकाम बनाने की अवाम से ख्वाहिश की। ఈ దేశ చరిత్రలో ఒక పక్క నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ దేశాన్ని ఏ విధంగా కులాల వారీగా మతాల వారీగా విచ్ఛిన్నం చేయాలని చూస్తుందో ఆ విచ్ఛిన్నాన్ని అడ్డుకోవాలని ఈ దేశం సమైక్యంగా ఐక్యంగా ఉండాలనే సంకల్పంతో సరిగ్గా సంవత్సరం క్రితం కన్యాకుమారిలో భారత్ జోడో పేరుతో పాదయాత్ర ప్రారంభించినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। BRS दौर में बांसवाड़ा हलके को करोड़ों मालियत के फंड से दी गई मिसाली तरक्की जो सिर्फ रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी से मुमकिन हुआ। मुख्तलिफ कायदीन ने इनसे मुलाकात करते हुए किया इजहार। CM KCR की कारकर्दगी व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की खिदमात से मुतासर होकर अंसापुर के BJP व कांग्रेस कायदीन ने की इनके हाथों BRS में शमूलियत हासिल। आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का दौरा आर्मूर मल्लारेड्डी तालाब पर जारी मिनी टैंक बॉन्ड के कामों का लिया जायजा। नंदीपेट सेंट्रल लाइटिंग का किया मुआयना व आंध्रा नगर के मुख्तलिफ कायदीन ने इनके हाथों की BRS में शमूलियत हासिल। कामारेड्डी में मुनाक़िदा मियां नीतू किरण की फर्जंद की शादी तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता, MLA बीकाला गणेश गुप्ता, गवर्नमेंट वेब दंपक गोवर्धन व दीगर ने की शिरकत। बोधन वोटर फहरिस्त की दोबारा जांच की जाए। सिर्फ अखिलती वार्ड से ही ज्यादा दरख्वास्तें होने पर रुकने पार्लियामेंट MP अरविंद ने जिले कलेक्टर को खत लिखते हुए जांच का किया मुतालबा। मोहब्बत के नाम पर हरासानी, बेटे की तालिबा ने की खुदकुशी, 2 टाउन पुलिस में मुकदमा दर्ज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।